Good morning, students. In last video, we have seen regarding what are the characteristic of a good source of energy. तो good source of energy की कुछ characteristic हमने देखी. Again, I would like to remind you all. The good source of energy is the source of energy which produce large amount of work per unit volume or mass, which is easily accessible or available, easy to store and transport, and economically cheaper. The definition of good source of energy: any system capable of providing energy in a convenient form at a steady rate over a long period. ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कंटिन्यूसली हमको प्रोविजन करती रहे, ऐसी सिस्टम जो हमको एनर्जी प्रोविजन करती रहे कन्वीनियंटली, इजीली, सेफली एंड चीपली, that is called as a good source of energy. Now today in this topic we will be continuing conventional sources of energy, that is non-renewable sources of energy, or we can say exhaustible sources of energy. In ancient time, wood यानी लकड़ा was the most common source of heat energy. लकड़े को जलाते थे, heat energy produce करते थे. The energy of the flowing water and wind was also used for limited activities. Can you think some of these uses? तो फ्लोइंग वाटर का हमने देखा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है. विंड एनर्जी से विंड मिल्स चलाई जाती है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. The exploration of coal as a source of energy was made the industrial revolution possible by increasing industrialization has led to better life quality all over the world. It has also caused global demand for energy to grow at a tremendous rate. The growing demand for the energy was largely met by the fossil fuels like coal and petroleum. Our technology was so developed for using these energy sources, but fuels were found over millions of years ago. ये जो fossil fuel हैं वो आजकल के नहीं, millions of years ago पहले बन चुके हैं, and they are only in limited reserves. बहुत ही कम है ये sources. The fossil fuels are non-renewable sources of energy, so we need to conserve them. इसलिए हमको इनको preserve करना चाहिए, conserve करना चाहिए, बेफालतू use नहीं करना चाहिए. If we were to continue consuming these resources at such an alarming rate and इतनी तेजी से, we would soon run out of the energy. यानी ये energy sources जो है वो खत्म हो जाएंगे. In order to avoid this, alternate sources of energy were explored. तो alternate बहुत सारे sources है, जैसे कि wind energy है, nuclear energy है, hydro electricity है, तो ये सारे alternative sources हैं. But we continue to largely depend on fossil fuel for most of our energy requirement. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है अदर डिसएडवांटेजेस टू. तो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं. वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट द एयर पॉल्यूशन, हवा का जो प्रदूषण है वो कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, एंड सल्फर दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड्स. ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. एंड आपको पता ही होगा बच्चों, लास्ट ईयर एसिड रेन के बारे में भी पढ़ा था कि एसिड रेन जो होता है वो किस तरह से होता है. तो दीज काइंड ऑफ ऑक्साइड्स गेट्स मिक्स्ड इन द ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ऑफ द एनवायरनमेंट and falls along with the rain, which causes acid rain. This leads to acid rain which affects our water and soil resources. In addition to the problem of air pollution, recall the greenhouse effect of the gases like carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रह के टेम्परेचर बढ़ाता है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं. तो कोल जो है यहाँ पे देख सकते हैं पाई चार्ट में सबसे मैक्सिमम यूज होता है. एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 1/4 यूज होता है, 1/4. न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही कम यूज हो रहा है, जबकि विंड एनर्जी है उससे भी कम यूज हो रहा है. How would our life change if we could no longer get electricity supply? अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अचानक से बंद हो जाए तो हम कब तक जिंदा रह पाएंगे या कब तक सरवाइव करेंगे? तो अब बहुत ही मुश्किल है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ का आदत पड़ चुकी है. The availability of the electrical energy to each individual in the country is one of the parameter to measure the growth of the country. पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना ठप पड़ जाएगी. The pollution caused by the burning fossil fuel can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process. यानी combustion process के machines जो होते हैं जिसमें ये fuel use होता है,
ऐसे मशीन्स को डेवलप करना चाहिए जो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे और कंबशन प्रोसेस एकदम अच्छे से करे. यूजिंग टेक्नोलॉजीज वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ द हार्मफुल गैसेस एंड एशेस यानी राख जो ऑब्टेन होती है उसमें जलाने के बाद इनटू सराउंडिंग, इसका भी बंदोबस्त करना चाहिए ताकि हार्मफुल गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में स्टे ना करे. Besides being used directly for various purposes in gases and stove and vehicle, do you know fossil fuels are the major fuel used for generating electricity? Definitely. Thermal power stations में electricity use जो produce होती है तो because of this coal से ही होती है. Let us produce some electricity at our small plant in the class and see what goes in producing our favorite form of energy. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे इसका डायग्राम के साथ ही है. दिस इज द प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर आप सब ये घर में होता ही है. यहाँ से आपको पता होगा जो सीटी होती है एक्चुअली यहाँ से एयर प्रेशराइज फॉर्म में बाहर निकलती है. नाउ हीट अप करना है ये प्रेशर कुकर को. इसके अंदर पानी हमने डाला हुआ है, पानी को हमको प्रेशर कुकर में हीट करना है. अब होगा क्या बच्चों, जब हीट क्रिएट होगी यहाँ पे तो प्रेशर कुकर का जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा. नाउ दिस इज अ पाइप. ये पाइप यहाँ पे लगा दिए सीटी की जगह. तो होगा क्या, यहाँ पे स्टीम जो है जो बाहर निकलेगी इस तरह से. नाउ दिस इज अ टेनिस बॉल. ये टेनिस बॉल है और इसके तीन तरफ यहाँ पे मेटालिक ब्लेड्स लगा दी गई है. ये मेटालिक ब्लेड्स जो है वो क्या करेगी, एज अ रोटर की तरह काम करेगी. रोटर बच्चों और कुछ भी नहीं होता, जैसे पंखा कैसे घूमता है तो वैसे. अब जब ये स्टीम है इस ब्लेड्स पे लगेगी तो ये रोटर पूरा क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा. अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामो रखा हुआ है. व्हाट इज डायनामो बच्चों? तो बहुत सारी साइकिल्स में आपने देखा होगा कि डायनामो लगा रहता है. डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो ये एक टाइप का जनरेटर हुआ, स्मॉल बेसिस का जनरेटर हुआ. तो डायनामो की जो शाफ्ट होती है वो कनेक्ट होती है रोटर ब्लेड के साथ और रोटर ब्लेड जब घूमेगा तो उसके साथ डायनामो की शाफ्ट घूमेगी और इस डायनामो के अंदर छोटे मैग्नेट्स होते हैं और मैग्नेट्स और कॉइल इसके अंदर जब मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. सो इस टाइप का स्ट्रक्चर है. ये जो फैन स्ट्रक्चर है इसको टरबाइन भी बोला जाता है. तो बड़े बड़े लार्ज स्केल पे जो थर्मल पावर स्टेशन में जो प्रोडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो टरबाइन के ऊपर स्टीम को छोड़ा जाता है जिसकी वजह से डायनामो घूमेगा और डायनामो के अंदर के पार्ट्स जब मैग्नेटिक पार्ट्स जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो ये एक छोटे बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक छोटा सा मॉडल है. दिस इज अवर टर्बाइन. तो इसको जैसे मैंने बताया ये टर्बाइन हो गया फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. द सिंपलेस्ट टर्बाइन हैज वन मूविंग पार्ट और रोटर ब्लेड असेंबली. द मूविंग फ्लूइड यानी कि यहाँ पे इस केस में स्टीम है, acts on the blade to spin them and impart energy to the rotor. Thus we can see that basically we need to move the fan. हमको ये फैन को मूव करना होता है. अब बड़े अमाउंट की अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो टरबाइन भी बड़ा होना चाहिए, जनरेटर भी बड़ा होना चाहिए. तो ये फैन को हम हाथ से नहीं घुमा सकते, तो इसके लिए हमको ज़्यादा फोर्स वाली चीज़ें चाहिए रहती है. The rotor blade with the speed with which would turn the shaft of the dynamo and convert the mechanical energy into electrical energy. तो डायनामो का काम क्या होता है, डायनामो या जनरेटर का, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. The form of energy which has been a necessity in today's scenario. The various ways in which it can be done depends upon the availability of the resources. कि हम कौन से रिसोर्स कर रहे हैं, हम वाटर यूज़ कर रहे हैं, हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं, हम कोल यूज़ कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं, हम डीजल यूज़ कर रहे हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है. We would see how the various resources of the energy can be harnessed and utilized to run the turbine and generate electricity in the following sections. तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट. इंडिया में बहुत सारी जगह थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी मेजॉरिटी थर्मल पावर प्लांट से ही हमारे घरों तक पहुंचती है. लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल आर बर्न स्पेशली कोल इन द पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर. वाटर को उबाला जाता है टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन्स द टर्बाइन. जैसे हमने ऊपर देखा कि ये जो प्रेशर कुकर से स्टीम निकली इसको हमने ब्लेड्स पे फेंका, तो वैसे ही पानी के बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं पावर स्टेशन में और पानी को गर्म करके उसकी स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और इसी तरह से बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू टरबाइन में फेंका जाता है उस स्टीम को. टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट
देन ट्रांसफरिंग कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने से बेटर है ये थर्मल पावर स्टेशन हम ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश करें जहां पे कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाते हो इजीली। Therefore, many thermal power stations are set up near the coal and oil fields. Definition: the term thermal power is used since fuel is burned to produce heat energy, which is converted to the electrical energy. यहाँ thermal power plant क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे कोल को हीट करके, वाटर को हीट करके, स्टीम से कन्वर्ट होके, टरबाइन को घुमा के, जनरेटर को चला के इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्लांट यानी वाटर से चलने वाला पावर प्लांट। Another traditional source of energy was the kinetic energy of the flowing water or the potential energy of the water at the height. Hydro power plant converts the potential energy of the falling water into electricity. So same procedure here, but instead of steam, यहाँ पे पानी फोर्सफुली टरबाइन पे फेंका जाएगा ताकि टरबाइन घूमे। Since there are very few waterfalls which could be used as a source of potential energy, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स, तो इसलिए डैम बनाए जाते हैं। बच्चों डैम बहुत ही सिंपल चीज़ है। क्या होता है, बड़े बड़े डैम जब बनाते हैं तो रिवर के बीच में बनाते हैं, तो रिवर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, पानी कलेक्ट किया जाता है, जहाँ से पानी आता है वहाँ पे पानी कलेक्ट किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से डैम में पानी छोड़ा जाता है। तो अपना उकाई डैम जो है वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है और वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट भी है। In the last century, large number of dams were built across all over the world. As we can see from the figure, the quarter of our energy, quarter यानी 1/4 of the energy requirement in India is met by hydro power plant. तो ऊपर जो हमने पाई चार्ट देखा, इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली 1/4 ऑफ द पार्ट है, ये जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल रहा है। Now let's see how this hydroelectric power works. In order to produce hydel electricity, हाई राइज डैम, ये बड़े डैम है, यहाँ पे डायग्राम आप देखते जाना बच्चों बाजू में, आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, रिवर के ऊपर बनाया जाता है तो ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देयर बाय कलेक्ट वाटर इन द लार्ज रिजर्वायर्स। रिजर्वायर यानी पानी जहाँ कलेक्ट होता है, तो ये बच्चों देखो रिजर्वायर है, यहाँ पे पानी कलेक्टेड है, पूरा का पूरा ये पानी ही है। The water level rises and in this process the kinetic energy of the flowing water get transformed into the potential energy. आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में लास्ट ईयर भी देखा था, जो फ्लोइंग वाटर होता है यानी जो मूविंग वाटर होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। अब ये जो पानी यहाँ के ठहर गया यानी स्टोर हो गया है, तो इस काइनेटिक एनर्जी वाले पानी में अब क्योंकि पानी ठहर गया है तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। द वाटर फ्रॉम द हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू द पाइप्स टू द टरबाइन। अब यहाँ पे ये जो गेट है ये गेट खुलेगा और पाइप्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो टरबाइन पे पानी फेंका जाएगा। क्योंकि ये आप देख सकते हो इंक्लाइन है तो पानी फोर्सफुली इस टरबाइन पे जाके टकराएगा, टरबाइन की ब्लेड रोटेट करेगी और ये जनरेटर के अंदर का शाफ्ट है वो रोटेट करेगा, जिसकी वजह से पावर हाउस यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके पाइपलाइंस के थ्रू अपने घरों, पावर लाइंस के थ्रू घरों तक आएगी। एट द बॉटम ऑफ द डैम, since the water in the reservoir would be refilled each time it rains, the hydropower is a renewable source of energy. क्योंकि पानी तो कंटिन्यूसली आता ही रहेगा, बारिश होती रहती है तो पानी कंटिन्यूसली आता रहेगा, तो it is a renewable energy sources which would not have to be worry about the hydroelectricity source getting used up. By the way, fossil fuel would be used or finished one day. फॉसिल फ्यूल जैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो वैसे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला। बट द लिमिटेशंस, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है बच्चों। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिग डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो लेट्स सी। हैव सर्टेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। द डैम कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन द लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेस। हर जगह कहीं पे भी नहीं, जहाँ पे रिवर का फ्लो काफी अच्छा खासा होता है वहां पे, प्रिफरेबली इन द हिली टेराइन यानी हिली एरियाज में, क्योंकि वहां से इंक्लाइन वाटर आ सकता है। लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ ह्यूमन लोग रहते हो, आर टू बी सेक्रीफाइस, उनको शिफ्ट करना पड़ता है एज दे गेट सबमर्ज यानी डूब सकते हैं पानी में, इसलिए एग्रीकल्चर लैंड को वो पूरा साफ कर देना पड़ता है, यानी वहाँ किसी भी तरह की खेती बाड़ी नहीं होगी, और ह्यूमन सेटलमेंट्स जो होते हैं उनको भी शिफ्ट कर देना पड़ता है।
लार्ज इकोसिस्टम यानी पॉन्ड, लैंड, वाटर इकोसिस्टम, ये सारे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं व्हेन सबमर्ज अंडर द वाटर इन द डैम। द वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, विच इज सबमर्ज, जो डूब गए होते हैं, रॉट्स, रॉट्स यानी सड़ते रहते हैं अंदर। एन एनारोबिक कंडीशन गिव्स राइज टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस। बच्चों एनारोबिक यानी विदाउट ऑक्सीजन, पानी के अंदर ये वेजिटेशन जो है बिना ऑक्सीजन के सड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। मीथेन गैस आपके पास पता ही होगा बच्चों, इट इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस। ये भी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करता है, मदद तो नहीं बोलेंगे बट टेम्परेचर बढ़ाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड पीपल, के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती, जो लोगों को, आदिवासी या जो ट्राइबल एरिया, जो रिवर के किनारे जो लोग रहते होते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना प्रॉब्लम ही हो जाता है। अपोजिशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ तेहरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा आर ड्यू टू सच प्रॉब्लम। तो बहुत अपोजिशन किया था, लोकलाइट जो होते हैं, लोकल गांव वाले जो होते हैं, आसपास के गांव वाले होते हैं, वो लोग हमेशा ही इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं इस टाइप के डैम बनाने के अगेंस्ट में। ऑब्वियसली क्योंकि डैम बनाना होता है तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी काफ़ी सारी होती है, हमने सारी चीज़ें देखी। तो दैट वाज द चैप्टर नंबर 14 अब तक, एंड दैट वाज द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर स्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल के बारे में इस टॉपिक में हमने देखा। रिगार्डिंग ऑल नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।